Here we will talk or discuss exercise 16 6.3, right? Question number first is that find the slope of the tangent to the curve y equal to 3x to the power 4 minus 4x at x equal to 4, right? तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। अब हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एम निकालते हैं। तो एम क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर बोथ साइड पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो on differentiating it will give you dy over dx equal to 12x cube minus 4. Now we have to find out the slope at point x equal to 4. So we will replace x equal to 4 in dy over dx. So after putting the value of x equal to 4 in dy over dx, we are getting dy over dx equal to 12 inside of bracket 4 whole cube minus 4. After solving, we are getting 764. So slope of the tangent of the given function at x equal to 4 is 764. Next question number second, right? Now find the slope of the tangent to the curve y equal to x minus 1 upon x minus 2, where x is not equal to 2 and x equal to 10, right? Here we have y equal to x minus 1 upon x minus 2. So on differentiating both sides with respect to x, we are getting dy over dx equal to d over dx of x minus 1 upon x minus 2. Here function is in the rational form, so we will use here quotient rule, right? So x minus 2 d over dx of x minus 1 minus x minus 1 d over dx of x minus 2 upon x minus 2 का whole square. After differentiating, we are getting x minus 2 into 1 minus x minus 1 into 1 over x minus 2 का whole square. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा minus 1 upon x minus 2 का whole square, right? Now we have to find out the value of dy over d at x equal to 10. So we are getting dy over dx at x equal to 10 minus 1 upon 10 minus 2 का whole square equal to minus 1 upon 8 का whole square, that is minus 1 upon 64. Slope of the tangent at x equal to 10 is minus 1 upon 64, right? Now question number third. Find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. X coordinate given you, मतलब x equal to 2 is given you and y equal to x cube minus x plus 1 is given you. First of all, we will find the slope of the tangent at point x equal to 2. So y equal to x cube minus x plus 1. On differentiating both sides with respect to x, we are getting dy over dx equal to 3x square minus 1, right? Now we have to find out the value of dy over dx at x equal to 2. So after putting x equal to 2 in dy over dx, we are getting dy over dx at x equal to 2 equal to 3 inside of bracket 2 whole square minus 1, that is d over dx at x equal to 2 is 11. So slope of the tangent at x equal to 2 is 11, right? Next question number 4. Find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3, right? So y equal to x cube minus 3x plus 2. On differentiating both sides with respect to x, we are getting dy over dx equal to 3x square minus 3, that is dy over dx at x equal to 3 equal to 3 inside of bracket 3 का whole square minus 3, that is 24. Therefore slope of the tangent at x equal to 3 is 24, right? Next question. Question number 5. Find the slope of the normal to the curve x equal to a cos q theta and y equal to a sin q theta at theta equal to pi by 4, right? We have x equal to a cos q theta. On differentiating both sides with respect to theta, we are getting dx over d theta equal to minus 3a.
यहाँ पर x टू दी पावर n की आइडेंटिटी लगेगी तो आएगा माइनस 3a कॉज स्क्वायर थीटा d ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, जिसका होता है माइनस साइन थीटा, राइट। तो dx ओवर डी थीटा इक्वल टू हो गया माइनस 3a कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। नाउ y equal to a sin theta is given you, y equal to a sin theta is given you, तो dy over d theta equal to हो जाएगा 3a sin square theta into cos theta. After that we have to find out the value of dy over dx at x, dy over dx, तो हमें मिलेगा dy over d theta upon dx over d theta, right. After putting the value of dy over d theta and dx over d theta, we are getting 3a sin square theta into cos theta upon minus 3a cos square theta into sin theta. After solving we are getting minus 3 sin theta upon cos theta. इस तरह से हमें मिलेगा dy over d theta equal to tan theta, right. After that we have to find out the value of dy over d theta at theta equal to pi by 4. तो हम dy over dx में थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लगा देंगे, तो हमें मिलेगा dy over dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4, दैट इज dy over dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1. नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारा माइनस 1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1. That's clear. Next question. Question number 6. Find the slope of the normal to the curve x equal to 1 minus a sin theta and y equal to b cos square theta at theta equal to pi by 2. Right? तो यहाँ पर x equal to दिया हुआ है 1 minus a sin theta. तो on differentiating both sides with respect to x, we are getting dx over d theta equal to minus a cos theta and y equal to b cos square theta दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा dy over d theta equal to minus 2v cos theta into sin theta, right. Now we have to find out the value of dy over dx. तो dy over dx equal to हो जाएगा dy over d theta upon dx over d theta. After putting the value of dy over d theta and dx over d theta, we will get minus 2b cos theta into sin theta upon minus a cos theta. cos theta से cos theta cancel हो जाएगा, तो हमें मिलेगा dy over dx equal to 2b sin theta upon a. Now we have to find out the value of dy over dx at theta equal to पाई बाई 2. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे थीटा की जगह पाई बाई 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b साइन पाई बाई 2 अपॉन a. अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2b इंटू 1 ओवर a दैट इज 2b ओवर a. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2b अपॉन a. तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2b अपॉन a दैट इज माइनस a अपॉन 2b. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, इजी है क्वेश्चन, 11th क्लास का मेथड यूज होना है बस. फाइंड द पॉइंट at which the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis, is parallel to the x axis. मतलब dy over dx equal to 0 given है, right. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Now on differentiating both sides with respect to x, we are getting dy over dx equal to d over dx of x cube minus 3x square minus 9x plus 7. तो हमें मिलेगा dy over dx equal to 3x square minus 6x minus 9, right. Now tangent is parallel to the x-axis, so therefore dy over dx equal to 0. तो हमें मिलेगा 3x square minus 6x minus 9 equal to 0. तो यहाँ पर हो जाएगा x square minus 2x minus 3 equal to 0. तो हो जाएगा x minus 3 and x plus 1 equal to 0. So we are getting x equal to 3 and x equal to minus 1, right. When x equal to 3,
तो हम x इक्वल टू 3 फर्स्ट में लगाएंगे तो y इक्वल टू हमें आ रहा है -20। ऐसे ही जब हम x इक्वल टू -1 लगाएंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 12। तो दे आर 2 पॉइंट्स, दैट इज 3 -20 एंड -1 12। नेक्स्ट, find a point on the curve y equal to x minus 2 का whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4, right? अब यहाँ पर दिया हुआ है tangent is parallel to the chord, तो हम क्या करें कि कोड का स्लोप निकालना है। अब वो स्लोप टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, तो कोड का स्लोप क्या होता है हमें पता है 11th क्लास में कि 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। नाउ y इक्वल टू इज गिवन यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है dy ओवर dx एट 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 2 डॉट 1। तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 2, राइट। अब हमें पता है कि टेंजेंट एंड कोड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर द स्लोप ऑफ बोथ लाइंस विल बी इक्वल। सो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग x इक्वल टू 3। तो अगर x इक्वल टू 3 हम इक्वेशन फर्स्ट ए में लगाते हैं तो हमें y इक्वल टू 1 गेट होता है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3, 1, राइट। सम एज क्वेश्चन नंबर 9। Find the point of the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11, right? तो given tangent is y equal to x minus 11। अब जब हम इसकी कंपेरिजन y equal to mx plus c से करेंगे तो m equal to 1 मिल रहा है। अब जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। तो इसका स्लोप निकलना है, मतलब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, राइट। तो इस तरह से हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11, तो x स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। तो x इक्वल टू 2 पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिलेगा y इक्वल टू माइनस 9 एज इट। x इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिलेगा y इक्वल टू 19। सो देयरफॉर देयर आर 2 पॉइंट्स, राइट, राइट। और जब 2 पॉइंट्स है हमारे पास तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए इक्वेशन ऑफ स्लोप m इक्वल टू 1 है हमारे पास और पॉइंट दिया हुआ है 2, माइनस 9। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस x1। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 1 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 2, दैट इज x माइनस y इक्वल टू 9 प्लस 2, तो x माइनस y इक्वल टू 11। लेकिन पॉइंट माइनस 2, 19 गिवन टेंजेंट पर लाई नहीं करता है, तो माइनस 2, 19 से कोई भी पॉइंट टेंजेंट पास नहीं होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन of all lines having slope -1 and are the tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1। अब यहाँ पर दिया हुआ स्लोप इक्वल टू -1 दिया हुआ है, राइट, और गिवन कर्व दिया हुआ y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसका हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हमें ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी आर गेटिंग dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x माइनस 1 का होल इनवर्स -1। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन वी आर गेटिंग माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1 का होल -2। तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दिया हुआ है कि स्लोप भी कितना है -1 है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लगा देंगे और हमें वहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा 0 एंड x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 0 लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो y इक्वल टू हमें मिलता है -1, और अगर हम x इक्वल टू 2 लगाते हैं तो हमें मिलता है y इक्वल टू 1। सो दे आर 2 पॉइंट्स 0, -1 एंड 2, 1।
Now we have to find out the equation of the line which passes through the point 0, -1 and having slope -1. तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. तो कितना हो जाएगा, y प्लस वन इक्वल टू -1 x माइनस जीरो, क्योंकि m कितना है -1 है, y1 कितना है -1 है और x2 कितना है 0 है. तो इस तरह हमें मिल रहा है y प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स एंड x plus y plus 1 equal to 0. Now second equation of the tangent passing through the point 2 comma 1 and having slope -1 कितना हो जाएगा, y minus y1 equal to -1 inside of bracket x minus 2. तो कितना मिलेगा, y minus 1 equal to minus x plus 2, that is x plus y minus 1 minus 2 equal to 0, or we can say x plus y minus 3 equal to 0, right. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 11, राइट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड आर द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3. अब कर्व कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसका डिफरेंशिएट करके हमें स्लोप निकालना है. तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब स्लोप कितने दिया हुआ 2, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2 है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1. तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 2, राइट. अब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर के इक्वल हो, राइट. सो देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप 2, sorry. Okay, next question number 12. It is the last one question of today. Here find the equation of all the lines having slope 0 which are tangent to the curve y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. Same process we have to apply. dy over dx equal to solve करेंगे तो हमें मिलेगा -2 inside of bracket x minus 1 upon x square minus 2x plus 3 का whole square. अब given that dy over dx equal to 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 inside of bracket x minus 1 upon x square minus 2x plus 3 का whole square equal to 0. तो हमें मिलेगा -2 inside of bracket x minus 1 का x minus 1 equal to 0, that is x equal to 1, right. तो if x equal to 1 with respect to y equal to कितना, 1 upon 1 का स्क्वायर -2 into 1 plus 3 equal to 1/2. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप और पॉइंट की वैल्यू लगा देंगे तो हमें मिलेगा y minus 1 upon 2 equal to 0 x minus 1 and plus that y equal to 1 upon 2, right. So equation of the required line कितना हो जाएगा, y equal to 1 upon 2. So these are 12 questions of exercise 6.3. Remaining question we solve in next video, and you have to solve these all questions carefully, right. Hello students, today in this video we will discuss the remaining questions of exercise 6.3. Today's first one question is 13, right. 13 question. Question number 13. Find the points on the curve x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1 at which the tangents are parallel to x axis and parallel to y axis, right. तो हमें यहाँ से क्लियर है कि हमें गिवन कर्व की टेंजेंट फाइंड आउट करनी है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो dy ओवर dx इक्वल टू 0 होता है, और जब कोई भी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो dy ओवर dx इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, राइट. तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 13. Here curve is given you x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1. अब इसको हम with respect to x differentiate करेंगे, तो on differentiating with respect to x on both sides we are getting एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमें y अपॉन 8 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9। तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 9y। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से सेकंड से क्या हो जाएगा, माइनस 16 अपॉन एक्स अपॉन माइनस 16x अपॉन 9y इक्वल टू जीरो। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू जीरो। अब हम x इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और y इक्वल टू प्लस माइनस 4. So hence the required point on the x-axis are 0,4 and 0,-4. B part, in this part tangent is parallel to y-axis, that is dx upon dy equal to 0 is given you, dx upon dy equal to 0 is given you. So we can write minus 9y upon 16x equal to 0 or y equal to 0. So putting y equal to 0 in first, we are getting x square upon 9 plus 0 square upon 16 equal to 1, that is x square equal to 9 or x equal to plus minus 3. So we can say the required point on the y-axis are 3, 0 and minus 3, 0. Question number 14. Find the equation of the tangent and the normal to the given curves at the indicated points, right? फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5 एंड y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,0. थर्ड पार्ट इज गिवन यू y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1. Fourth part is given you y equal to x square at 0,0 and fifth part is given you x equal to cos t and y equal to sin t at t equal to pi by 4. So first of all we are solving first part. Here given curve is y equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5. On differentiating with respect to x we are getting dy over dx equal to 4x क्यूब x to the power n की आइडेंटिटी लगेगी तो dy over dx equal to 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10. अब हमें स्लोप निकालना है एट 0,5 तो dy over dx एट 0,5. तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 dy over dx में लगा देंगे तो हमें मिलेगा dy over dx एट 0,5 इज माइनस 10, राइट. Now we have to find out the equation of the tangent. Then equation of the tangent passing through the point 0,5 and with slope minus 10 is क्या होती है, y minus y0 equal to dy over dx inside of bracket x minus x1. तो यहाँ पर हो जाएगा y minus 5 equal to minus 10 x minus 0. तो यहाँ पर हो जाएगा y minus 5 equal to minus 10x और we can write down 10x plus y minus 5 equal to 0. So right. Now we have to find out the equation of the normal. तो slope of normal क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 10 दैट इज 1 अपॉन 10. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 0,5 कितना हो जाएगा विथ स्लोप 1 अपॉन 10 y माइनस 5 स्लोप लगाएंगे 1 अपॉन 10 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 10 inside of bracket y minus 5 equal to x minus 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 10y minus 50 equal to x और x minus 10y plus 50 equal to 0. Right. Now fourth part. In this part y equal to x square is given you. Right. That is the equation of parabola. अब हमें स्लोप निकालना है तो dy over dx equal to 2x हो जाएगा. अब स्लोप एट 0,0 निकालना है तो dy ओवर dx एट 0,0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, राइट. नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 विद स्लोप 0 कितना हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू 0 x माइनस 0, राइट. तो y इक्वल टू 0. नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट.
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 0, तो -1/0 इक्वल टू -1/0 रखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा y -0 इक्वल टू -1/0 इंटू x -0, that is -x -0, that is x equal to 0. Now fifth part, in this part y equal to is given you sin t and x is given you cos t. So these are parametric equation, right? So first of all we differentiate x with respect to t and y also with respect to t. So dx over dt equal to minus sin t and dy over dt equal to cos t. जब हम dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू cos t और dx ओवर dt की वैल्यू है sin माइनस sin t। तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot t। क्या हो जाएगा माइनस cot t। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cot पाई बाई 4। तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा -1, राइट। राइट, तो हमें मिलेगा ये राइट। तो यहाँ पर हमें मिला हमें डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट टी, राइट। अब टी इक्वल टू जो हम पाई बाई 4 लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, टी इक्वल टू हमने पाई बाई 4 लगाया तो हमें क्या मिल रहा है माइनस कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, राइट। तो हमें क्या मिला डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट। तो जब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम टी इक्वल टू पाई बाई 4 एक्स में लगाएंगे, राइट। और टी इक्वल टू पाई बाई 4 किस में लगाएंगे बाई में लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू कॉट पाई बाई 4 एंड वाई इक्वल टू साइन टी पाई बाई 4, राइट। तो कॉट पाई बाई 4 की कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और y इक्वल टू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो पॉइंट कितना हो गया हमारा 1/√2 इंटू 1/√2। अब स्लोप कितना है टेंजेंट का -1 है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है dy ओवर dx और ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस x1, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाए बाई -1/√2 -1 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1/√2, राइट। आफ्टर सॉल्विंग we are getting square root 2y minus 1 equal to minus square root 2x minus 1। तो हमें से यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पाई बाई 4। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -1, तो कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा 1, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, राइट। तो कितना हो जाएगा माइनस बाई -1/√2 इक्वल टू 1x माइनस 1/√2। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग x माइनस y इक्वल टू 0, राइट। दैट इज अवर सॉल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द curve y equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 30, right। तो
गिवन कर्व इज कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, राइट, माइनस 2x प्लस 7। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 2। अब जो गिवन लाइन है वो कितनी है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखाएंगे तो कितना हो जाए, y इक्वल टू 2x प्लस 9। तो कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वी आर गेटिंग m इक्वल टू 2। अब जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y मिल रहा है हमें 7। तो पॉइंट कितना हो गया, 2,7 और स्लोप कितना है हमारा 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाए, y माइनस 7 इक्वल टू 2 इनसाइड ब्रैकेट x माइनस 2, राइट। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस 7, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट। here given line is 5y minus 15x equal to 13। तो आफ्टर सम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y 5 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए, y इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5। कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब गिवन लाइन और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या होता है, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू लगा के हमें मिलेगा 2x माइनस 2 इक्वल टू -1 अपॉन 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 6। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें y इक्वल टू मिलेगा 217 ओवर 36, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 अपॉन 6 कॉमा 217 अपॉन 36 विद स्लोप 3 कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 18x माइनस 36y माइनस 127 इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 16। So that the tangent to the curve y equal to 7qx plus 11 at the point x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन कर्व का स्लोप निकालेंगे x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर। अगर दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं देन वी कैन से द टेंजेंट इज पैरेलल एट बोथ पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, राइट। तो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, राइट। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 7d ओवर dx ऑफ x³ प्लस 11। 3 को इनसाइड आगे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21x² प्लस 0। तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21x²। नाउ dy ओवर dx x इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 84। अब स्लोप मिल गए हमें x इक्वल टू 2 पर। सेम एज वी विल फाइंड आउट द स्लोप एट x इक्वल टू -2। इट इज ऑल्सो 84। So the slope at x equal to 2 and x equal to -2 both are equal, so we can see the tangents are parallel at x equal to 2 and x equal to -2। कैसी है टेंजेंट, पैरेलल है, क्लियर। ओके, find the point on the curve y equal to x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, is equal to the y coordinate of the point। जो स्लोप है मतलब dy ओवर dx किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट मतलब x³ के इक्वल है। तो पहले हम गिवन कर्व को लिखेंगे। गिवन कर्व कितना है हमारा, y इक्वल टू x³, राइट, y इक्वल टू x³। डिफ्रेंशिएट किया तो dy ओवर dx इक्वल टू मिला हमें 3x²। अब हमें दिया हुआ है कि जो dy ओवर dx है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दैट इज dy ओवर dx इक्वल टू y, और यहाँ से मिलेगा हमें dy ओवर dx इक्वल टू x³, राइट। अब dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, 3x² और यहाँ पर कितनी है x³। दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, हमने इक्वल लगा दी। सॉल्व करके हमें फैक्टर्स मिलेंगे
x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो अगर हम x इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में लगाते हैं तो हमें y इक्वल टू 0 मिलता है, राइट। और अगर हम x इक्वल टू 3 फर्स्ट में लगाते हैं तो हमें y इक्वल टू कितना मिलता है, 27। तो हमारे पॉइंट्स कितने हो गए, 0,0 एंड 3,27, राइट। नेक्स्ट, फॉर द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, कर्व दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज है यहाँ पर, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे जिस पर टेंजेंट निकालनी है, राइट। तो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया x0, y0। अब y दिया हुआ है तो यहाँ से हम dy ओवर dx निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4, राइट। अब क्या दिया हुआ है कि dy ओवर dx किस पॉइंट पर निकालना है, x0, y0 पर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, dy ओवर dx एट x0, y0 इक्वल टू 12x टू दी पावर 2 माइनस 10x0 टू दी पावर 4, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप हमें पता है, राइट, और पॉइंट हमें पता है। तो हम निकाल सकते हैं y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। m कितना है, 12x0 माइनस 10x0 टू दी पावर 4, राइट। सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,0, अब दिया हुआ है कि जो टेंजेंट किससे पास होती है, 0,0 से पास होती है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस y0 इक्वल टू 12x टू दी x0 टू दी पावर 2 माइनस 10x0 टू दी पावर 4 माइनस x0, राइट। तो y0 इक्वल टू हो जाएगा 12x0 टू दी पावर 2 माइनस 10x टू दी पावर 4 इंटू x0। इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y0 इक्वल टू 12x0 टू दी पावर 3 माइनस 10x0 टू दी पावर 5, इक्वेशन थर्ड, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, मिल गया। अब जो पॉइंट है हमारा x0, y0 किस पर लाई करता है, हमारा किस पर लाई करता है, x0 गिवन कर्व पर लाई करता है। तो उस पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा, y0 इक्वल टू 4x0 टू दी पावर 3 माइनस 2x0 टू दी पावर 5, फोर्थ पार्ट हो गया, राइट। अब थर्ड और फोर्थ दोनों y0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ये भी y0 की वैल्यू है और ये भी y0 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा x0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 माइनस x0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा, 1 प्लस x0 इक्वल टू 0, दैट इज x0 इक्वल टू माइनस 1, सेम एज 1 माइनस x0 इक्वल टू 0, 0। तो x0 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। तो इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,0। इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू y0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2, राइट। तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, -1, माइनस का 2। अब इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा पॉइंट कितना मिलेगा, 1,2, राइट। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, 0,0, -1, -2 एंड 1,2, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इनडायरेक्टली इज गिवन यू dy over dx equal to 0. So now x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0. So y square equal to कितना हो जाए, minus x square plus 2x plus 3, that is equation first. On differentiating with respect to y x on both sides, we are getting 2y dy over dx equal to minus 2x plus 2, right. तो यहाँ से मिलेगा मैं dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई,
राइट। तो गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, सो माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्विंग के आफ्टर हमें मिल रहा है एक्स इक्वल टू वन, राइट। सॉल्विंग के आफ्टर कितना मिल रहा है, हाँ एक्स इक्वल टू वन। इफ एक्स इक्वल टू टू तो x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू कितना है वन, एक्स इक्वल टू कितना वन। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर और y इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा वन कॉमा प्लस माइनस टू, राइट। कितना हो रहा है हमें y इक्वल टू वन प्लस माइनस टू, राइट। ओके, now we will solve question number 20, right? So look here, question number 20, right? Yeah, find the equation of the normal, find the equation of the normal at the point a m square, right, to the curve a y square equal to a x cube, right, a x ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो गिवन कर्व कितना है हमारा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें स्लोप निकालना है, तो जब स्लोप निकाल लेंगे तो बोथ साइड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला टू ए वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, राइट। अब पॉइंट दिया हुआ है हमारा ए एम स्क्वायर इंटू ए एम क्यू, क्या दिया हुआ है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री इनसाइड ब्रैकेट ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टू ए इनसाइड ब्रैकेट ए एम क्यू। तो कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर एम टू दी पावर फोर अपॉन टू ए स्क्वायर एम टू दी पावर थ्री। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू थ्री एम अपॉन टू, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री एम अपॉन टू, राइट। नाउ क्या मिलेगा हमें देखते हैं जरा, नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा right। So now slope of normal equal to minus वन अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री एम अपॉन टू इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री एम, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना है y माइनस ए एम क्यू इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री एम इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस ए एम का स्क्वायर, क्योंकि हमने x1 और y1 की वैल्यू लगा दी ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल पुट कर दिया माइनस टू अपॉन थ्री एम। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग टू एक्स प्लस थ्री एम बाई माइनस ए एम क्यू माइनस टू ए एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, right, find the equation of the normal to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus y 4 equal to 0, right। अब कर्व दिया हुआ y equal to x cube plus 2x plus 6 on differentiating both side with respect to y we are getting dy over dx equal to 3x square plus 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब गिवन लाइन कितनी है x प्लस फोर्टीन बाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स अपॉन फोर्टीन माइनस फोर अपॉन फोर्टीन।
जब इसकी कंपेरिजन हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इक्वल टू -1/14 एंड c इक्वल टू -4/14, राइट, क्लियर। अब नॉर्मल एंड द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/14 इक्वल टू -1/3x² प्लस 2, तो ये मिलेगा हमें 3x² इक्वल टू 12, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और x इक्वल टू ±2। इफ x इक्वल टू 2 तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 18, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 2,18। अगर हम x इक्वल टू -2 लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा -6, तो पॉइंट कितना हो जाएगा -2,6। अब हमें दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने हैं, राइट। तो पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन कौन से पॉइंट्स होगा, 2,8 से 2,18 से और विद स्लोप -1/14। तो वैल्यू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में लगाने पर हमें मिलेगा x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, -4 से कितना हो जाएगा y और विद स्लोप -1/14, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से इक्वेशन कितना हो जाएगा x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द नॉर्मल एट द पैराबोला। किसके निकालने हैं, टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। पॉइंट कितना दिया हुआ है 80² 280, तो गिवन कर्व कितना y² इक्वल टू 4ax, तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी आर गेटिंग dy ओवर dx इक्वल टू 2a ओवर y। अब पॉइंट कितना दिया हुआ 80² 280, तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 80² 280 इक्वल टू 2a अपॉन 280, that is dy over dx equal to 1/t at point 80² 280. Now we have to find out equation of the tangent. तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट कितना है 80² 280 और स्लोप कितना है 1/t, तो वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा y माइनस 280 इक्वल टू 1/t इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 80², तो yt माइनस 280² इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 80², तो x माइनस y प्लस 80² इक्वल टू 0, दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ इक्वेशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये कितना हो जाएगा -1/1/t इक्वल टू -t। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, स्लोप कितना हो जाएगा माइनस का t। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज xt प्लस y माइनस 80³ माइनस 280, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, prove that the curve x equal to y square and xy equal to k cut at right angles if 8k square। ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आया है। किस में आया है, बोर्ड एग्जाम्स में आया, राइट। गिवन कर्व कितना है, पहला कर्व दिया हुआ है आपको एक्स वाई स्क्वायर, सेकेंड कर्व दिया हुआ है एक्स वाई के, दोनों स्लोप का हमें, दोनों इक्वेशंस का हमें स्लोप निकालना है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू उठा के सेकेंड में लगाते हैं, तो वहाँ से मिलेगा y क्यू इक्वल टू k, तो y इक्वल टू k टू दी पावर 1/3। अब y की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू k टू दी पावर 2/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा k टू दी पावर 2/3 इंटू k टू दी पावर 1/3।
अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट निकालना है, तो dx अब dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2y। तो dy ओवर dx एट पॉइंट k रेज टू दी पावर 2y3 कॉमा k रेज टू दी पावर 1/3 कितना होगा 1/2 इंटू k टू दी पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा k टू दी पावर 1/3/2। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व सेकेंड कितना हो जाएगा dy ओवर dx इनसाइड ऑफ ब्रैकेट xy इक्वल टू k। तो ये कितना हो जाएगा x dy ओवर dx प्लस y dy ओवर dx इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग dy ओवर dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। अब dy ओवर dx एट द पॉइंट निकालेंगे तो यह मिलेगा हमें -1/k टू द पावर 1/3। अब दिया हुआ है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जब परपेंडिकुलर होती हैं तो वहां पर क्या कंडीशन लगती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे और हमें मिलेगा 2 इंटू k टू द पावर 2y3 इक्वल टू 1। तो ये हो और टेकिंग क्यू ऑन बोथ साइड्स वी आर गेटिंग 2k रेज टू द पावर 2/3 होल पावर 3, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होता है। तो इस तरह से हमें मिलेगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 और k स्क्वायर इक्वल टू 1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, find the equation of the tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at x point 0, x0, y0। अब सीधा सीधा है कि पहले हम हाइपरबोला को डिफरेंशिएट करेंगे और उसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप की वैल्यू एट पॉइंट x0, y0 पर निकाल लेंगे। निकाल लिया, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y0 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन गेट हो रहा है x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम एज अब हम इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन x0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा y माइनस y0 अपॉन a स्क्वायर y0 प्लस x माइनस x0 अपॉन b स्क्वायर x0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट question number 25, here y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 दिया हुआ है विच इज पैरेलल टू द लाइन। टेंजेंट किसके पैरेलल, लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे और हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू 3/2y। अब गिवन लाइन कितनी है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 4x प्लस 5, तो y इक्वल टू 2x प्लस 5/2। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 2, राइट। अब टेंजेंट और गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3/2y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3/4। if y इक्वल टू 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 और 9/16 इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 9/16 प्लस 2 इक्वल टू 3x, तो 9 प्लस 32/16 इक्वल टू 3x। तो मिलेगा हमें 41/48 इक्वल टू x, राइट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया 41/48 3/4, राइट।
ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे, तो स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। सो दैट्स अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 26, we have to find out the slope of the normal at x equal to 0। सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट x equal to 0 पर, तो ये 3 आ रहा है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज माइनस वन अपॉन 3। तो डी ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, राइट। In question number 27, y equal to x plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x. So we have to find out the point. The given line y equal to x plus 1. Comparing करेंगे y equal to mx plus c से m equal to 1. Equation of curve given है y square equal to 4x. तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4 हो जाएगा, और dy ओवर dx इक्वल टू मिलेगा 2 अपॉन y, राइट। अब लाइन फर्स्ट और टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहाँ से दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप इक्वल लगाने पर बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और बाई की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में लगाने पर हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,2। सो ऑप्शन ए इज राइट। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज कौन सी फिनिश की है हमने, एक्सरसाइज 6.3। ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर से 14 मार्क्स का आया है, राइट। अब हो सकता है कि 12 मार्क्स आए, पूरा चैप्टर क्लियर। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, क्लियर। Are you getting me? Okay, ठीक है।